In today's lecture, we are going to discuss the concepts of object-oriented programming. In today's lecture, we will take an example of class and object. And what is exactly, I can say, objects are related to each other. We take an example of day-to-day life. We can explain the concepts of object-oriented programming using a best example of car. Okay, so first of all, what is object? In general, object means anything which occupies the space or anything which is having mass. For example, car is an object, stool is an object, table is an object. Okay. Now, for every object, we have some properties and we have some function associated with each. If you are talking of the car, the properties of the car may be color of the car, company of the car, then capacity of engine, you can say size of the, you can say fuel capacity and seating capacity and so on. So every object has got certain properties. So not only properties, but with every object we have certain functions. For example, we are talking of the car. Function may be start car, stop car, clean car, or whatever may be. So every object has got certain space, required space. Now in the sense of computer world, object needs a space in the memory. Second, every object has got a properties and some function associated with it. So what is class now? Class is, we can say, template for the object. Class tells us how object will be and what functions will be there. So we can say that class will take properties and function under one roof. कोई भी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है और उस ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड कुछ फंक्शंस होते हैं. ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज में जनरली उस ऑब्जेक्ट, जैसे उस ऑब्जेक्ट का मास हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट का रंग कलर हो सकता है एंड सो ऑन. नाउ let us take an example of car. Now in this case of car, we can show that we have taken certain properties here. The model of the car, then the color of the car, then the fuel capacity of the car, and music system in the car. Now this music system is something different actually. These are, we can say, a general properties, but music system will be actually taken from somewhere else. जनरली जो कंपनी कार बनाती है जरूरी नहीं वो म्यूजिक सिस्टम बनाती. जैसे हम लोग मारुति का कार है और उसमें सोनी का म्यूजिक सिस्टम फिट करें. सो म्यूजिक सिस्टम मे बी अ प्रॉपर्टी ऑफ कार, बट दिस म्यूजिक सिस्टम मे बी टेकन और मे बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सम अनदर, यू कैन से क्लास. नाउ हियर आई हैव अ क्लास कार. दिस क्लास टेल अस व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ माय कार and what are the functions of my car. For example, show car. This may be the function will be used to show the car. जैसे हमने नया कार परचेस कर लिया और हम वो कार सबको बताने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने कौन सा फंक्शन यूज किया? शो कार. स्टार्ट कार, कार को शुरू करना है, ये फंक्शन है. स्टॉप कार, कार को रोकना है, ये फंक्शन है. तो इस तरह इस कार के बारे में क्या क्या है, इस कार की कुछ प्रॉपर्टीज है. देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ द कार, there are certain functions of the car, जैसे show car, start car, stop car. और क्लास ने क्या किया है, दोनों को अंडर वन रूप लिया है. सो प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस. सो एक और अलग फंक्शन यहाँ दिखाया गया है, दैट इज अ कंस्ट्रक्टर. ये कंस्ट्रक्टर कब यूज होगा? जैसे हमें कार का ऑब्जेक्ट बनाना है. सी क्लास जस्ट टेल अस, क्लास बताता है कि ऑब्जेक्ट कैसे रहेगा. क्लास इज एन इमेजिनेशन, ऑब्जेक्ट इज रियल एंटिटी, वी कैन से. हम क्लास से बताते हैं कि कार में ये प्रॉपर्टीज होगी, कार के ये फंक्शन होंगे, लेकिन जब हम एक्चुअल कार बनाएंगे, दैट इज व्हाट, हम कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. और ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमें इन प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है. इन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज हमको बतानी है. जैसे मेरे कार का कलर क्या रहेगा, मेरे कार का कौन सा मॉडल है, उसमें फ्यूल कैपेसिटी क्या है, ये प्रॉपर्टीज मुझे बताना है. दैट इज व्हाट क्रिएटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए स्पेशल फंक्शन यहाँ लिखा गया है, उसका नाम क्लास के जैसा ही है, दैट इज नोन एज अ कंस्ट्रक्टर. और इस कंस्ट्रक्टर से हम नए कार को बनाएंगे. ओके, सो क्लास टेल अस
What are the properties? What are the functions? And a special function known as a constructor. Now here in this case I am going for parameterized constructor. Okay. तो ये हो गया एक कार के बारे में. अब हम थोड़ा अंदर जाके चलते हैं. इस कार में मैंने बताया कि म्यूजिक सिस्टम हम फिट करने जा रहे हैं. म्यूजिक सिस्टम वाला कंपनी अलग है. हम किसी से म्यूजिक कार बनाने वाला क्या करने वाला है, म्यूजिक सिस्टम किसी से मंगवाएगा और कार में क्या करेगा, फिट करेगा. अब म्यूजिक सिस्टम वाली कंपनी के बारे में सोचते हैं. जो म्यूजिक सिस्टम बनाता है उसके लिए म्यूजिक सिस्टम की भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और म्यूजिक सिस्टम के भी कुछ फंक्शंस होंगे. नाउ म्यूजिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? म्यूजिक सिस्टम की कंपनी, उसका कॉस्ट, उसका कलर. अब और एक चीज नहीं दिखाई दे रही, मेमोरी कार्ड. आप देखो मेमोरी कार्ड म्यूजिक सिस्टम जो बनाता है जरूरी नहीं वो मेमोरी कार्ड बनाए. जैसे हमें सॉन्ग स्टोर करने, सपोज वी वांट टू स्टोर द सॉन्ग्स, सो वी यूज अ मेमोरी कार्ड. नॉट नेसेसरली दैट मेमोरी कार्ड विल बी ऑफ द सेम कंपनी एज दैट ऑफ द कंपनी ऑफ म्यूजिक सिस्टम. सो इट मे बी मेमोरी कार्ड, जैसे हमारे पास सोनी का म्यूजिक सिस्टम है और मेमोरी कार्ड हमने किसी दूसरी कंपनी का, मान लो सैनडिस्क का लगा. So ये memory card वाली चीज यहाँ दिखाई गई, the object shown here, so that is actually taken from some another company. So I will give us some reference to another class. We'll talk about this later on. First of all, so we have a music system and having these are the basic properties, and this is actually a property or this is actually a object of another class. We can talk about it later on. So मेरे पास अगेन म्यूजिक सिस्टम के रिलेटेड कुछ फंक्शंस होंगे. जैसे म्यूजिक सिस्टम किसी को दिखाना है मुझे, डिस्प्ले. म्यूजिक सिस्टम को स्टार्ट करना है, प्ले. म्यूजिक सिस्टम को स्टॉप करना है, सो प्ले, स्टॉप, डिस्प्ले आर द फंक्शंस रिलेटेड टू व्हाट, म्यूजिक सिस्टम. अब म्यूजिक सिस्टम को बनाने के लिए एक कंस्ट्रक्टर लगेगा. सो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर. द नेम ऑफ दिस इज सेम एज नेम ऑफ द क्लास. देखो ये सब लिख दिया मतलब म्यूजिक सिस्टम नहीं बन गई. म्यूजिक सिस्टम कब बनेगी? जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और ये सारी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पास करेंगे. दैट इज व्हाट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे यूज किया है. सो दैट विल कंस्ट्रक्ट अ म्यूजिक सिस्टम. नाउ हम और एक चीज पे आते हैं. अभी म्यूजिक सिस्टम के अंदर मेमोरी कार्ड हमने इंसर्ट करना है सॉन्ग्स को स्टोर करने के लिए. वी वांट टू इंसर्ट अ मेमोरी कार्ड. नाउ द मेमोरी कार्ड एक्चुअली किसी और कंपनी का है. अब वो कंपनी क्या सोचती है, उस मेमोरी कार्ड की भी कुछ प्रॉपर्टीज होगी. जैसे उसका साइज होगा, साइज ऑफ द मेमोरी इन जीबी. द मेक ऑफ द, जैसे मेक कुछ रहेगा मेमोरी कार्ड का, फिलिप्स है, सैनडिस्क है, कोई और है. ओके, उसमें ट्रैक नंबर का एक एडिशनल प्रॉपर्टीज मैं दे रहा हूं. दैट विल अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दिस. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, मेमोरी कार्ड. आई कैन से दिस इज एक्चुअली अ करंट ट्रैक. नाउ मेमोरी कार्ड के रिलेटेड भी कुछ फंक्शन है. जैसे डिस्प्ले, मैंने मेमोरी कार्ड बनाया, डिस्प्ले कर रहा हूँ. मेमोरी कार्ड से मैं रीड कर रहा हूँ. आई विल रीड अ सॉन्ग फ्रॉम मेमोरी कार्ड. आई विल क्लोज द मेमोरी कार्ड. सपोज मुझे गाना स्टॉप करना है, आई विल क्लोज. गाना स्टार्ट करना है, आई वांट टू लिसन अ सॉन्ग, रीड. सो रीड एंड क्लोज मे बी द फंक्शंस रिलेटेड टू मेमोरी कार्ड. एक्चुअली मेमोरी कार्ड से रीड करना मींस वी हैव टू मूव टू पर्टिकुलर ट्रैक, वी कैन से. And if suppose you want to close the memory card, we'll just give a default track that is a 0. So in this way memory card. तो अभी बात कुछ इस तरह है. We have a car. That car is having certain properties. In that car, we have a music system. Actually, music system is another class. Music system is itself is having some properties. Now in that music system, we have a memory card. So memory card is another class. That may be from different company. So we have three classes. मेमोरी कार्ड बनाना है, फिट कर देंगे म्यूजिक सिस्टम में. म्यूजिक सिस्टम बन गया, म्यूजिक सिस्टम को फिट कर देंगे जब कार बनाएंगे. सो कार, म्यूजिक सिस्टम एंड मेमोरी कार्ड आर द थ्री डिफरेंट क्लासेस. एंड थ्री डिफरेंट क्लासेस टेल अस वी कैन हैव, देयर आर थ्री डिफरेंट कंपनीज. कार मे बी फ्रॉम मारुति, म्यूजिक सिस्टम मे बी फ्रॉम सोनी एंड मेमोरी कार्ड मे बी फ्रॉम सैनडिस्क. ओके, नाउ हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. जैसे मैंने म्यूजिक सिस्टम की प्रॉपर्टी में क्या बताया, where there may be a memory card. So this memory card actually refers to the class memory card. और कार की प्रॉपर्टी में मैंने बताया म्यूजिक सिस्टम होगा और this music system refers to the class music system. So I can say
In car we have a music system that is from this class, and in music system I have a memory card that is from this class. So in this way these classes are related to each other. हमारे डे टू डे लाइफ में सोचो कार बनाना है, कार में म्यूजिक सिस्टम फिट करना है और म्यूजिक सिस्टम के अंदर मेमोरी कार्ड, और हो सकता है ये तीनों कंपनीज अलग अलग ही है और तीनों की अलग अलग वैसे अपने प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में उन्होंने बताया है लाइक दिस। अब जब एक्चुअल कार बनाना है, सी ऑल दिस थिंग विल वर्क आउट व्हेन वी कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट्स। एक्चुअली क्लास इज जस्ट एन इमेजिनेशन, क्लास विल टेल अस कि क्या होगा, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, उसमें क्या क्या फंक्शंस होंगे, इसके बारे में क्लास हमको बताता है। नाउ फॉर एग्जांपल दिस वी कैन कंस्ट्रक्ट the object like this. First of all we use this constructor to construct what? Memory card. Okay, so it may be syntax like memory card, my memory card is equal to new memory card, and we pass the parameters here like memory card का size रहेगा 2GB और उसका make बनेगा for example SanDisk। मतलब ये constructor कॉल करते वक्त हम क्या पास कर देंगे? 2 and SanDisk for example, it will construct a memory card। अब जब मेमोरी कार्ड बन गया है, नाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट व्हाट? म्यूजिक सिस्टम। सो फॉर म्यूजिक सिस्टम्स कंस्ट्रक्ट विल कॉल अ कंस्ट्रक्टर म्यूजिक सिस्टम। सो जब हम ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, आई हैव अब म्यूजिक सिस्टम के बारे में सोचते हैं। सो मान लो म्यूजिक सिस्टम का कंस्ट्रक्टर हमें कॉल करना है। हाउ यू कॉल दिस? फॉर एग्जांपल इन द सिंटैक्स ऑफ जावा, म्यूजिक सिस्टम माय म्यूजिक सिस्टम इज इक्वल टू न्यू म्यूजिक सिस्टम एंड विल पास द पैरामीटर्स हियर। You can say it may be company, for example music system का company I will pass as a Sony, cost may be suppose 5000, then color black may be, and memory card actually here I will pass the previously constructed object। जैसे हमने memory card के वक्त जो object बनाया था, मान लो उसका नाम मैंने my memory card रखा होगा, that will pass here। मतलब ये constructor हम कब पास कर सकते हैं? तब कॉल कर सकते हैं जब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ लगने वाला है। ओके, वो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, मींस व्हाट? मेरा म्यूजिक सिस्टम बन गया और उसमें पहले वाला ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फिट हो गया। अब ये नया ऑब्जेक्ट बन गया। अब बात चलती है, नाउ वी हैव टू कॉल व्हाट? कंस्ट्रक्टर फॉर द कार। हमें कार बनानी है। कार बनाते वक्त मॉडल में भी सपोज मैंने मॉडल मारुति वैगनआर फॉर एग्जांपल, कलर में भी व्हाइट, फ्यूल कैपेसिटी में भी 22 लीटर्स। नाउ म्यूजिक सिस्टम का ऑब्जेक्ट मैं पास करूंगा, वही ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ कंस्ट्रक्ट किया था। मान लो मैंने उसका नाम रखा होगा माय म्यूजिक सिस्टम, सो आई विल पास हियर माय म्यूजिक सिस्टम। सो म्यूजिक सिस्टम जो पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट है वो यहाँ यूज कर लिया और बाकी सब चीजें नाउ वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ कार। इस तरह कार क्या हो गई है? कंस्ट्रक्ट हो गई। सो अब आती है फंक्शंस की बारी। मान लो मुझे कार को डिस्प्ले करना है, सपोज आई वांट टू डिस्प्ले द कार, आई हैव अ फंक्शन शो कार। अब मैं जब कार को डिस्प्ले करूंगा, आई विल शो system.out.println। I have used a shortcut for this. Actually the full form of this is SOP, means system.out.println, that is Java syntax. So SOP stands for system.out.println। मॉडल में डिस्प्ले करूंगा, कलर डिस्प्ले करूंगा, फ्यूल कैपेसिटी बताऊंगा। अब मुझे ये सब डिस्प्ले करते वक्त मुझे ये भी बताना है मेरे कार में कौन सी म्यूजिक सिस्टम फिट है। I will call a function music system ms is actually what is related to this ms is an object of which class? Music system। this object dot function, this object is calling which function? Display। मतलब जब ये फंक्शन रन होगा ये सब डिस्प्ले हो जाएगा और यहां से कंट्रोल यहां आएगा and that will display what? कंपनी। अब ये कौन सा कंपनी? दैट इज ऑफ द म्यूजिक सिस्टम। सोनी डिस्प्ले होगा, कॉस्ट 5000 डिस्प्ले होगा, कलर ब्लैक डिस्प्ले होगा। अब ये सब डिस्प्ले होते वक्त आपको मेमोरी कार्ड भी डिस्प्ले करना है। यू आर कॉलिंग अनदर फंक्शन yum.display। व्हाट इज yum? इट्स अ ऑब्जेक्ट ऑफ मेमोरी कार्ड। सो दैट ऑब्जेक्ट कैन कॉल दिस फंक्शन। वेयर इज दिस डिस्प्ले? दिस इज द डिस्प्ले। नाउ यहां से कंट्रोल यहां आएगा, इट विल डिस्प्ले व्हाट? Size of memory card and make of the memory card। For example 2GB size, make was suppose SanDisk। इस तरह जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे आपको कार का मॉडल दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा, फ्यूल कैपेसिटी दिखाई देगा, आपको म्यूजिक सिस्टम का कंपनी, कॉस्ट, कलर दिखाई देगा, आपको मेमोरी कार्ड का साइज और मेक दिखाई देगा। सो दिस फंक्शन वी आर कॉलिंग, एक्चुअली इट विल कॉल दिस फंक्शन and this will call this function,
रिटर्न यहाँ आएगा, यहाँ से रिटर्न यहाँ आएगा। तो इन दिस वे व्हेन यू कॉल शो कार, you are actually showing not only car but also the music system and the memory card. Likewise, so the functions are related to each other. अब जैसे और एक फंक्शन के बारे में मैं सोच रहा हूँ, मैंने मान लो कार को स्टार्ट करना है, so I will use a function start car. This is used to start the car. अब जब हम स्टार्ट करते हैं, हमें गाना भी सुनना है, so यूजर एक ट्रैक के बारे में बताता है, so यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर लिखा है ट्रैक. So when we'll start the car, we call this function. How will you call this function? Suppose कार का ऑब्जेक्ट है my car. So my car dot start car और उसमें आप पास करें ट्रैक नंबर 2. मान लो आपको 2 नंबर का गाना सुनना है. So this will work like this: my car dot start car and you will pass a 2. That 2. अब कार तो स्टार्ट हो गई, लेकिन म्यूजिक सिस्टम स्टार्ट कैसे होगा? You have to call one more function, that is a play. This play is related to what? Music system. So we'll call ms, this function will call ms dot play. ms is the object of music system, play is a function, and this track, जो track आपने 2 यहाँ दिया था, that same track is passed here, वो इसे मिल जाएगा track number को, और ये function रन हो जाएगा. अब म्यूजिक सिस्टम कब ऑन होगा? जब मेमोरी कार्ड से गाना रीड होगा. So this will call another function m dot read. It will read. Now जो track number आपने यहाँ दिया था, वही track number यहाँ आ जाएगा. Finally, the same track is selected. Means what? आपने गाड़ी स्टार्ट कर दिया. कहाँ गाड़ी स्टार्ट किया? मैं स्टार्ट कार. और कार स्टार्ट करते ही म्यूजिक सिस्टम प्ले हो गया और म्यूजिक सिस्टम में मेमोरी कार्ड रीड होना स्टार्ट हो गया और आपने ट्रैक नंबर यहाँ दिया था, वो यहाँ तक पहुँच गया. इस तरह कार स्टार्ट करो और ट्रैक नंबर बताओ, म्यूजिक सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, प्ले हो जाएगा और रीडिंग स्टार्ट हो जाएगा पर्टिकुलर ट्रैक का. इन दिस वे दीज फंक्शंस विल वर्क आउट. और आपको ये फंक्शन कहां से कॉल करना है? मान लो आपके पास कार का ऑब्जेक्ट बना है, दैट मे बी माय कार. सो हाउ विल यू कॉल दिस? माय कार डॉट स्टार्ट कार एंड दैट विल कॉल ms डॉट प्ले एंड दैट विल कॉल m डॉट रीड, लाइक दिस. अब आखिरी बात, मुझे कार को स्टॉप करना है. So I have one more function, that is what? Stop car. So how will you call this? I will call it as a my car dot stop car. For example, my car is the object of car. अब ये कार को जब आप रोकते हैं, actually हमको म्यूजिक सिस्टम भी स्टॉप करना है. So here what is called? ms dot stop. ms dot stop is call this. That will call what? m dot close. So that will call this. So यहाँ पे ट्रैक 0 हो जाएगा डिफॉल्ट. मेमोरी कार्ड क्लोज हो गया, म्यूजिक सिस्टम स्टॉप हो गया और कार स्टॉप हो गई. सो आपने कार को स्टॉप किया, लेकिन इफेक्ट कहां तक गया? जब आप कार को स्टॉप कर रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम स्टॉप हो गया. जब आप म्यूजिक सिस्टम स्टॉप कर रहे हैं, ट्रैक 0 हो गया और मेमोरी कार्ड क्लोज हो गया. सो इन दिस वे you call one function, that call another function and that call another function, like this. तो हम लोग अभी थोड़ा कंक्लूड करते हैं. देखो हमने कार बना दी, ये कार एक्चुअल है, दिस इज द ऑब्जेक्ट. इस कार में मैंने एक म्यूजिक सिस्टम फिट कर दिया और इस म्यूजिक सिस्टम में मैंने एक कार्ड डाल दिया. तो ये जो अप्रोच है ये हो सकता है जैसे हमने टॉप डाउन अप्रोच लिया, कार के अंदर म्यूजिक सिस्टम और फिर मेमोरी. और अब कंस्ट्रक्ट करते हो हम बॉटम टू अप अप्रोच ले सकते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड बना दो, फिर म्यूजिक सिस्टम बना दो, फिर कार बना दो और ये इसमें फिट कर दो और ये इसमें फिट कर दो. सो अब जनरली एक इसमें सोचने वाली एक बात है कि कार बनाने वाली कंपनी अलग है, ये कंपनी अलग है, ये कंपनी अलग है. कार के डिटेल्स इन लोगों को पता है, लेकिन ये लोग रेडीमेड ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं म्यूजिक सिस्टम. ओके, और म्यूजिक सिस्टम बनाने वाली कंपनी ये नहीं बना रही कि मेमोरी कार्ड बनाए. तो मेमोरी कार्ड वाले, म्यूजिक सिस्टम वाले मेमोरी कार्ड का रेडीमेड ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं. तो इस ऑब्जेक्ट का डिटेल उस पर्टिकुलर कंपनी को पता है, इस ऑब्जेक्ट का डिटेल उस पर्टिकुलर कंपनी को पता है और इसका डिटेल इसको पता है. सो म्यूजिक सिस्टम, कार म्यूजिक सिस्टम के डिटेल्स के बारे में अगर आपको जानना है तो म्यूजिक सिस्टम का क्लास पढ़ लो, उसके फंक्शंस पढ़ लो और उसकी प्रॉपर्टीज, और वो सारी प्रॉपर्टीज हम प्राइवेट बना सकते हैं और उसके फंक्शंस को एक्सेस दे सकते हैं. सो वी कैन हैव इनकैप्सुलेशन हियर. दिस इनकैप्सुलेशन इज व्हाट we can have properties and functions under one roof, like a capsule. जैसे आपने कैप्सूल देखा हो, we have this
दो कलर की कैप्सूल होती है, मान लो एक कलर है प्रॉपर्टीज और दूसरा कलर है फंक्शंस, ये दोनों एक जगह आ गए और ये कोई क्लास है। ओके, अब इस प्रॉपर्टीज की डिटेल्स और इस प्रॉपर्टीज को चेंज करना, इस पे वर्कआउट करना, दैट मे बी व्हाट functions can do this. So we can make these properties private and these properties can be operated by functions. और बाहर वाले लोगों को अगर ये प्रॉपर्टीज जानना है, ये प्रॉपर्टीज को चेंज करना है, they should call what functions. So functions we can say the properties are in the safe hands of functions. Other outside world will not able to directly access the properties provided the properties are private. So the functions, related function will access this properties. This is what the encapsulation is. Then we can have inheritance also. इनहेरिटेंस में क्या है, जैसे मैंने कार का क्लास बना दिया, इसमें कुछ कम है, मान लो कुछ नई प्रॉपर्टीज को मुझे यहाँ डालना है, जैसे मैंने कार का वेट नहीं डाला था अभी, सो अगर मैं नया क्लास बनाऊं तो ये सब रिपीटेशन होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। सो आई कैन हैव न्यू कार, हो सकता है न्यू कार नाम का क्लास बना दूं और उसमें सब नई प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूं, और ये न्यू कार we can say is a extend or extends car, we can say is a extension of this car. So हम नया क्लास हमेशा बना सकते हैं पिछले वाले क्लास को यूज करके, that is what known as inheritance. So inheritance से हमारा फायदा होगा, ये नई कार वाला क्लास वो सब प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा जो कार में थी, और वो सब लिखने की जरूरत नहीं, we should write only new properties. और हम ज्यादातर कार से अच्छा न्यू कार का ऑब्जेक्ट बनाना पसंद करेंगे क्योंकि वो ज्यादा डिटेल होगा, उसमें नई प्रॉपर्टीज होगी, नए फंक्शंस होंगे। सो वी कैन से बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस आवर वर्क इज सेव्ड, आवर टाइम इज सेव्ड, वी कैन से वी कैन ऑलवेज कंस्ट्रक्ट ए न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास विद द न्यू प्रॉपर्टीज एंड न्यू फंक्शंस। सो दिस इज अबाउट द इनहेरिटेंस। Encapsulation means what? Properties and function under one roof. So properties we can make private, or we can say these properties can be only operated by using proper functions. Outside world will not able to operate the properties like this. So this is what the encapsulation is. One more thing is that is polymorphism. So we can say generally OOP के लिए आपको एक word याद रखना है, pi, polymorphism, inheritance and encapsulation. Now polymorphism हमें बताएगा कि हम लोग फंक्शंस के सेम नाम ले सकते हैं, we can have actually object, कैसे सॉरी function overloading and function overriding. This is something we can have same name functions for different purpose. जैसे मुझे डिस्प्ले, तीन टाइप के डिस्प्ले करना है, I can have same display. So function can be repeated. Only what is to be changed? Maybe the number of parameters, type of parameters. इससे क्या होगा? हमें ज़्यादा functions याद रखने की जरूरत नहीं है. So polymorphism means what? We can have same names for the functions that may be related to the function overloading, we can say. और function overriding is भी actually related to the inheritance. उसमें हो सकता है new car में भी display नाम का function होगा और car में भी display नाम का function होगा, सब सेम। बट आप जब न्यू कार का ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो ये डिस्प्ले कॉल होगा, और ओल्ड कार का ऑब्जेक्ट अगर इसका ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो ये डिस्प्ले कॉल होगा। दैट इज समथिंग रिलेटेड टू फंक्शन ओवरराइडिंग। एनीवे पॉलीमॉर्फिज्म मींस व्हाट? सेम नेम मे बी देयर बट वी कैन हैव डिफरेंट फंक्शंस, बट व्हेन यू कॉल द सेम नेम एक्चुअली समथिंग शुड बी डिफरेंट, मे बी पैरामीटर, मे बी ऑब्जेक्ट, accordingly function overloading or function overriding will work. We can have a constructor overloading also. जैसे मैंने अभी के एग्जाम में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बताया था, वी कैन हैव डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे आप किसी डिफॉल्ट कार को बना दो, यू डोंट टेल आपको कार कैसा चाहिए, यू से कार बना दो, और कंपनी अपना डिफॉल्ट कार बनाती है। सो यू विल नॉट टेल कि मुझे कौन सा मॉडल चाहिए, मुझे कौन सा कलर चाहिए, दैट इज समथिंग अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज। सो वी कैन हैव कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू again a polymorphism. So polymorphism, encapsulation and inheritance, these are the three important proper concepts related to object oriented programming. अगर कोई लैंग्वेज बोलता है कि we are a object oriented programming language, they should have all this. Okay, so this is about the OOP. Now thanks for the listening lecture. I am Ashish Surana from Surana Engineering Classes, Nasik. Thank you.